الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے۔ اس لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے شروع کیا تھا الجملۃ الاسمیہ، یعنی جملہ اسمیہ کے بارے میں مزید ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے، ہم جانیں گے کہ کیا کیا قواعد ہے، کیا رولز ہے، اور کیسے ہم مرکب ناقص کو تبدیل کر سکتے ہیں مرکب تام میں، خصوصاً جملۃ الاسمیہ میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے پاس مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب کہتے ہیں ایسے مفردات کے مجموعے کو جب دو یا دو سے زیادہ مفردات یعنی ورڈز عربی میں مل جاتے ہیں، ان کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب مینس کمپاؤنڈ، اور یہ عربی میں جو مرکب ہے یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ بامانہ مرکب، جس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں، اور مرکب تام کو ہی ہم سینٹنس کہتے ہیں۔ اور دوسرا مرکب ایسا ہے کہ جو مکمل مفہوم نہ دے، کمپلیٹ معنی نہ دے، ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب کی ناقص، جو مرکب ناقص ہے، اس کو انگلش میں ہم فریزز بھی کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ ان کو ہم نے تفصیلاً پڑھا، ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھا، ایگزامپلز کے ساتھ پڑھا۔ پھر ہم نے پچھلے لیکچر سے مرکب تام کو شروع کیا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مرکب تام ایسا مرکب ہے جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے مرکب کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام کی اصل میں صرف 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جملہ اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جہاں تک ہم اس کا تعلق رکھتے ہیں تو جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، ناؤن سے ہو، کسی چیز سے ہو، کسی شخص سے ہو، کسی جگہ سے ہو۔ ایسے جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور عربی میں ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ کی کم از کم 2 حصے ہوتے ہیں، اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے پارٹ کو ہم مبتدا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسا پارٹ ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا پارٹ جو جملہ اسمیہ کا ہوتا ہے، جو اس مبتدا کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ہم پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں، یعنی خبر وہ حصہ ہے جو مبتدا کے متعلق ہمیں کوئی انفارمیشن دے، ایسی چیز کو ہم خبر کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں اصلاً 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم مبتدا کہتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے کو ہم خبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مبتدا اور خبر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے جملے میں، یعنی جملہ اسمیہ میں کوئی اور چیز ہے، تو اس اور چیز کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر۔ یعنی اگر مزید انفارمیشن یا مزید کچھ یعنی ڈیٹیلز ہمیں خبر کے دینے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں، جس کو ہم عام زبان میں متعلق خبر، یعنی خبر کے متعلق مزید انفارمیشن، اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ یعنی موٹا موٹی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ عربی میں جملہ اسمیہ میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ 2 حصے لازمی ہے۔ پہلے حصے کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرا حصہ اس کی خبر کہلاتا ہے۔ اور ان 2 کے علاوہ اگر تیسری کوئی چیز آپ جملہ اسمیہ میں پاتے ہیں تو اس تیسری چیز کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ اب پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی، مثالیں دی، قرآن سے بھی کچھ مثالیں دی۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو مرکبی یعنی ناقص ہے، مرکبی ناقصہ، ان کی 4 قسمیں ہیں: مرکبی توصیفی، مرکبی اشاری، مرکبی اضافی اور مرکبی جاری۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کیا یہ جو 4 ہمارے پاس مرکبات ہے، مرکبی ناقصہ کی جو قسمیں ہیں، 4 مرکبات،
क्या इनको हम जुमला बना सकते हैं, यानी जो फ्रेजेस हमारे पास है क्या उनको हम मुकम्मल सेंटेंसेस बना सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या रूल्स है, यही आज का हमारा लेक्चर है। याद रखिएगा, मुरक्कबी तौसीफी जो है, ये मुकम्मल मुरक्कबी तौसीफी कभी मुब्तदा बन सकता है और कभी ये मुरक्कबी तौसीफी आपके सामने जुमला इस्मिया में खबर बन के आएगा। हालांकि जब ये खबर बन के आता है मुरक्कबी तौसीफी, तो बहुत कम जगहों पे आप ये देखेंगे कि वो खबर बन के आ गया। अक्सर व बेशतर मुरक्कबी तौसीफी मुब्तदा बन के आता है। मुरक्कबी इशारी के बारे में याद रखिएगा, मुरक्कबी इशारी हमेशा मुब्तदा बन के आएगा। मुरक्कबी इशारी कभी भी खबर बन के नहीं आएगा। यानी जब भी आप कभी देखेंगे मुरक्कबी इशारी जुमले इस्मिया में इस्तेमाल हुआ है तो वो हमेशा मुब्तदा होगा। मुरक्कबी इशारी कभी भी खबर बन के नहीं आएगा। इसके बाद मुरक्कबी इजाफी के बारे में याद रखिएगा, मुरक्कबी इजाफी मुब्तदा भी बन के आ सकता है, खबर भी बन के आ सकता है। ये आप रूल याद रखिएगा। जहां तक ताल्लुक है मुरक्कबी जारी के बारे में, तो याद रखिएगा मुरक्कबी जारी कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता और मुरक्कबी जारी जो है ये खबर बन के आता है, मुतल्लिक की खबर बन के आता है या कायम मुकाम खबर बन के आता है। तो मुरक्कबी जारी जब भी आप देखेंगे जुमला इस्मिया में, ये खबर की सूरत में आएगा, यानी खबर उस वक्त नहीं होगी तो ये मुतल्लिक की खबर बन के आएगा, या इसको हम उस वक्त कायम मुकाम खबर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आप अपनी जगह नोट्स में याद रखिएगा कि मुरक्कबी नाकिसा जो है, जिनकी 4 किस्में हैं, क्या अगर हम इस्तेमाल उनको कर सकते हैं जुमले इस्मिया में तो किस तरह कर सकते हैं? क्या वो मुब्तदा बन के आ सकते हैं, क्या वो खबर बन के आ सकते हैं, या दोनों मुब्तदा और खबर दोनों बन के आ सकते हैं? तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। मुरक्कबी तौसीफी और मुरक्कबी इजाफी दोनों सूरतों में आ सकता है। मुरक्कबी इशारी सिर्फ मुब्तदा बन सकता है और मुरक्कबी जारी खबर बन के आ सकता है, जिसको हम मुतल्लिक की खबर या कायम मुकाम खबर कहते हैं। मुरक्कबी जारी कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आएगा, इसी तरह मुरक्कबी इशारी कभी भी खबर बन के नहीं आएगा। अब इस चीज को हम तफसील के साथ मिसालों के जरिए इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कैसे हम इन मुरक्कबात से जुमले बना सकते हैं। सबसे पहले मिसाल ले लीजिए मुरक्कबी तौसीफी। मुरक्कबी तौसीफी आपको पता है, मुरक्कबी तौसीफी में 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है मौसूफ, जिसके बारे में सिफ्त बयान की जाती है, और मौसूफ के बाद जो दूसरा इसम होता है उसको हम कहते हैं सिफ्त। मौसूफ प्लस सिफ्त हमारे पास बन जाता है मुरक्कबी तौसीफी। अगर आप मुरक्कबी तौसीफी को मुरक्कबी ताम यानी जुमला इस्मिया बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? मौसूफ आपको पता है, इसको आपको यानी मारिफा लाना पड़ेगा। जब इसको आप मारिफा लाएंगे तो ये मुब्तदा बनेगा, और सिफ्त जो है उसको आपको नकिरा बनाना पड़ेगा। आप याद रखिएगा मुरक्कबी तौसीफी में मौसूफ और सिफ्त एक ही कंडीशन में होता है। मिसाल, अगर मौसूफ मुब्तदा यानी मौसूफ अगर मारिफा होगा, सिफ्त भी मारिफा होगी। मगर अगर आपको मुरक्कबी तौसीफी को मुरक्कबी ताम यानी जुमला इस्मिया बनाना है, उस सूरत में मौसूफ को आप मारिफा बना सकते हैं और जबकि सिफ्त को आप नकिरा में ला सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जुमला जो है जुमला इस्मिया ये मारिफा नकिरा कॉम्बिनेशन में ही बन के जुमला बनता है। मुरक्कबी तौसीफी में जब आपको पता है कि हमारे पास मौसूफ प्लस सिफ्त एक ही कंडीशन में होगा, ये मारिफा हो सकता है या नकिरा हो सकता है। मगर अगर आपको मुरक्कबी तौसीफी को यानी बनाना हो जुमला इस्मिया, उस सूरत में जो मारिफा होगा यानी जो मुब्तदा होगा मौसूफ होगा, उसको आप मारिफा लाएंगे तो वो मौसूफ से निकल कर मुब्तदा बन जाएगा, जबकि उसकी सिफ्त को आप नकिरा लाएंगे तो वो खबर बन जाएगा। तो इस तरह हम मुरक्कबी तौसीफी को मुरक्कबी ताम यानी जुमला इस्मिया में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि मुरक्कबी ताम यानी जुमला इस्मिया जो है ये मारिफा प्लस नकिरा की कंडीशन यानी मारिफा नकिरा यानी जब इसका कंसेप्ट आता है मारिफा प्लस नकिरा, तो इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये जुमला बनता है। आपके सामने कुछ मिसालें देंगे ताकि आपको पता चलेगा कि मुरक्कबी तौसीफी से मुरक्कबी ताम कैसे बना। देखिए, याद रखिएगा, अल्लाहु, ये आपको पता है ये मुब्तदा है। मुब्तदा कैसे है? क्योंकि ये मारिफा है।
اللہ جو لفظ اللہ ہے، صفت اللہ ہے، نام جو ہے اللہ رب العزت کا اللہ، یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے غفور، اگر الغفور ہوتا، الغفور، اللہ الغفور یاد رکھیے گا، اس صورت میں یہ مرکبی توصیفی ہوتا، کیونکہ اللہ بھی یعنی معرفہ ہوتا، اور الف لام لگانے سے الغفور بھی معرفہ بنتا۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ معرفہ پلس معرفہ ہوتا ہے تو وہ مرکبی توصیفی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس دونوں اسما معرفہ یا نکرہ ہو تو وہ مرکبی توصیفی کہلاتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا اللہ کے بعد الغفور کو ال ہٹا کے ہم نے لکھا ہے غفورن، تو غفورن جو ہے نکرہ ہے، کیونکہ نکرہ اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ اللہ غفورن ترجمہ ہو گیا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت غفور ہے، یعنی اللہ غفور، اللہ غفور ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو لاسٹ میں ہے میں نے لگایا، یہ معرفہ پلس نکرہ کی کمبینیشن سے آٹومیٹیکلی آ گیا، کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ جملہ اسمیہ میں جو لاسٹ میں ہے آتا ہے، اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ الگ سے نہیں آتا۔ جب آپ رولز کو فالو کرتے ہیں، معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن کو لاتے ہیں، تو خود بخود یعنی یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور آخر میں ہے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اصل میں تھا عذاب شدید، عذاب شدید یعنی بہت شدید عذاب، یہ مرکبی توصیفی تھا۔ مگر اگر ہم مرکبی توصیفی کو مرکبی تام بنائیں گے تو عذاب کو الف لام لگا کے اس کو ہم معرفہ بنائیں گے، العذاب معرف باللام، یعنی الف لام لگانے سے نکرہ کو ہم نے معرفہ بنایا۔ اس کو میں نے مثالوں کے ذریعے پچھلے لیکچرز میں بیان کیا ہے۔ تو العذاب اصل میں تھا عذابن، عذابن کو جب ہم نے ال لگایا تو یہ معرفہ بن گیا، اور شدید اس کو ہم نے نکرہ ہی رکھا۔ تو مرکبی توصیفی جو عذاب شدید تھا، اس میں ہم نے عذاب کو الف لام لگانے کے بعد معرفہ بنایا، جبکہ شدید کو نکرہ ہی رکھا۔ العذاب شدید یعنی جو عذاب ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت شدید ہے، اس میں بھی ہے جو آ گیا وہ معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے آ گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسری مثال یہاں پر ہے، اصل میں تھا اجر عظیم، اجر عظیم یعنی عظیم اجر، عظیم بدلہ، اس وقت یہ مرکبی توصیفی ہوتا، مگر اجرن کو ہم نے الف لام لگانے کے بعد معرفہ کیا، یعنی معرفہ بنایا، جب وہ معرفہ بن گیا تو وہ مبتدا کی شکل لے گیا، الاجر عظیم، اور عظیم جو ہے اس کو ہم نے نکرہ ہی رکھا، تو یہ صفت سے نکل کر ہمارے پاس خبر بن کے آ گیا، الاجر مبتدا، عظیم یہ خبر، مبتدا پلس خبر جملہ اسمیہ بن کے آ گیا، یعنی اجر جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، یعنی عظیم اجر ہے، یعنی ال لگانے سے یہ یعنی معرفہ بن گیا، اور معرفہ بننے کے بعد یہ مبتدا بن گیا۔ ایک اور مثال ہے، اصل میں تھا ماء طہور، ماء طہور یعنی پاک پانی، اس وقت یہ مرکبی توصیفی ہوتا، مگر ماء کو جب ہم نے الف لام لگایا تو ہم نے اس کو نکرہ سے نکال کر معرفہ بنایا، جب اس کو معرفہ بنایا الف لام لگانے کے بعد تو یہ ہمارے پاس مبتدا بن گیا، طہور کو ہم نے نکرہ ہی رکھا، تو مبتدا نکرہ کمبینیشن سے ہمارے پاس جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جو بھی جملہ جو بھی مرکب اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ الماء پانی، طہور پاک ہے، یہ لاسٹ میں ہے میں نے کیسے لگایا، یعنی معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے لاسٹ میں خود بخود ہے آ گیا۔ اسی طرح ہے القرآن نور، اصل میں تھا قرآن نور، قرآن تو ویسے بھی اگر آپ قرآن پڑھیں گے، القرآن، قرآن ویسے نارمل جو زبان میں القرآن اگر پڑھیں گے تو یہ معرفہ ہے، یعنی ویسے بھی قرآن جو ہے یہ معرفہ ہی ہے، تو القرآن معرفہ آ گیا، نور جو ہے اس کی یہ یعنی نکرہ بن کے اس کی خبر بن گئی، تو قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے۔ الصلاۃ، اب یہ تو تمام ہمارے پاس یعنی جنس کے اعتبار سے
मुज़क्कर है। अब मारिफा की कुछ यानी मुअन्नस की एक मिसाल ले लेते हैं। अस्सलातु, अस्सलातु अलिफ लाम लगाने से सलातुन जो था यानी जो नकरा था वो मारिफा बन गया। अस्सलातु नमाज, काइमतुन खड़ी हो गई। अब यहाँ पर आपने देखा बाकी 4 एतबारात से, बाकी 3 एतबारात से ये फॉलो करते हैं। ये जिन्स के एतबार से मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, ये वाहिद, ये भी वाहिद, ये हमारे पास है यानी आराबी हालत में ये जिसको हम कहते हैं रफा में है, मरफू है, ये भी रफा में। ठीक है, सिर्फ मारिफा नकरा हमने कॉम्बिनेशन किया, उसमें हमने चेंजेस लाए और ये मुरक्कबी तौसीफी निकल कर मुरक्कबी ताम यानी जुमला इस्मिया बन गया। अल अबदानी, अबदानी यानी 2 बंदे। यहाँ पर अब हमने मिसाल दी है मुसन्ना की, यानी आपके पास जो मुब्तदा है ये 2 है, मुसन्ना है। इसकी जो खबर आएगी वो भी यानी मुसन्ना आएगी, तस्निया आएगी। सालिहानी, अबदानी ये रफा में है, सालिहानी, हानि आनी की जो साउंड है ये यानी आराब के हिसाब से हमारे पास रफा की साउंड है। ये भी रफा में, ये भी रफा में, ये भी मुसन्ना, ये भी मुसन्ना। फर्क सिर्फ इतना है। और ये भी अबदानी, अबदानी यानी ये भी मेल, ये भी मेल। तो याद रखिएगा सिर्फ एक जगह फर्क है कि अल लगाने से ये मारिफा बन गया तो मुब्तदा बन गया, और ये अलिफ लाम न लगाने की वजह से नकरा ही रहा। मारिफा नकरा की यानी कॉम्बिनेशन से हमारे पास इसम बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। अस्सहाबतु ये जुमला यहाँ पर यानी जमा का सेगा है। अस्सहाबतु सादिकून यानी तमाम सहाबा सच्चे हैं। अस्सहाबतु सादिकून ये भी जुमला इस्मिया है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। मारिफा नकरा, मारिफा अलिफ लाम लगाने की वजह से। और यहाँ पर ये यानी याद रखिएगा हमने इसके बारे में एक बार पढ़ा है, यानी सादिकूना ये जमा है। अस्सहाबतु हमने पढ़ा था कि हमारे पास अस्सहाबतु जो है ये यानी नकरा की सूरत में आ सकता है, नकरा वाहिद की सूरत में आ सकता है, जब सादिकूना इन्हें जमा हो सकता है। इसको आगे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। अल-मुमिनून फाइजून, अल-मुमिनून मुब्तदा, फाइजून खबर, अलिफ लाम लगाने की वजह से मारिफा, और यहाँ अलिफ लाम लाम नहीं है तो खबर नकरा में आ गई। मारिफा नकरा की सूरत में यानी मूमिन कामयाब होने वाले हैं या मूमिन कामयाब है। अल-मुमिनून फाइजून तमाम मूमिन कामयाब है। अल-मुशरिकातु यहाँ पर हमारे पास आतु यानी साउंड जो है ये मुअन्नस की है, यानी मुशरिक औरतें जो है ज़ालिमातुन वो जुल्म में है यानी वो अंधेरे में। तो यहाँ से पता चल गया है कि मुरक्कबी तौसीफी से हम मुरक्कबी ताम बना सकते हैं। आपको जो मौसूफ होगा उसको आपको मुब्तदा यानी बनाना पड़ेगा, मुब्तदा बनाने के लिए मारिफा बनाना पड़ेगा, जबकि जो उसकी सिफ्त है उसको नकरा बनाएंगे, उसको नकरा रखेंगे तो वो खबर बन के यानी मुब्तदा और खबर बन के हमारे पास जुमला बन के आए। अब दूसरी कंडीशन है मुरक्कबी इशारी से मुरक्कबी ताम बनाना। आपने देखा है कि मुरक्कबी तौसीफी से मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है। खबर बहुत कम आता है, मगर मुरक्कबी इशारी से हमेशा मुब्तदा बनेगा, खबर नहीं बनेगा। उसको आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसमें इशारा आपको पता है कि ये तो हमेशा मारिफा ही होता है। इसमें इशारा जब भी होगा हादा, हादिही, हादानी, हाउलाई, तिलका, तानिका, उलाइका, ये तमाम जो हमारे पास है इसमें इशारा है, अस्मा इशारा है, ये हमेशा मारिफा होते हैं। तो इसको हमेशा ये मुब्तदा बनेगा। और मुशारुन इलै को सिर्फ आपको नकिरा बनाना है, यानी आप इसमें इशारा को नहीं छेड़ सकते। इसमें इशारा हमेशा मारिफा होता है, आपको सिर्फ मुशारुन इलै को नकिरा बनाना है तो ये खबर बन जाएगी। इस तरह हम मुरक्कब इशारी से है का माने पैदा कर सकते हैं और ये जुमला बनेगा। मिसाल के तौर पर हादा रजुलुन ये एक मर्द है। अगर होता हादा अर रजुलु, हादा अर रजुलु तो वो मुरक्कबी इशारी होता, याद रखिएगा। मगर जब हमने हादा पढ़ा, हादा हमेशा मारिफा होता है। हमने पढ़ा कि अस्मा इशारा हमेशा हमेशा मारिफा होते हैं। और रजुलुन आखिर में दो पेश की वजह से ये नकिरा है। मारिफा नकरा की वजह से
यानी कॉम्बिनेशन से हमारे पास है का तर्जुमा निकला एक मर्द, ये एक मर्द है। हाजा रजुलन, ये एक मर्द है आ गया तो ये जुमला इस्मिया, क्योंकि हाजा आ गया, हाजा ऑलरेडी हमारे पास इसमें इशारा है, तो ये एक मर्द है। हादिही शजरतुन, ये देखिए यहाँ मुअन्नस का सेगा, आखिर में मुअन्नस का सेगा, ये एक दरख्त है, ठीक है, क्योंकि दरख्त मुअन्नस है। हादिही ऑलरेडी इसमें इशारा मारिफा हो गया, शजरतुन ये खबर बन गया, क्योंकि इसको हमने यानी अशजरतु से शजरतुन बनाया, यानी इसको हमने नकिरा बनाया, तो ये बन गया ये एक दरख्त है। हादानी साहिरानी, मुसन्ना की मिसाल, हादानी मुसन्ना के लिए ये मारिफा है, साहिरानी ये नकिरा है। बाकी आप देखिए बाकी तीन कंडीशंस में ये मुसन्ना, ये भी मुसन्ना, ये रफ़ा में, ये भी रफ़ा में, और ये मुज़क्कर, ये भी हमारे पास मुज़क्कर है। ज़ानिका, ज़ानिका एक तो है ज़ालिका, दूसरा है ज़ानिका, मुसन्ना के लिए, दूर के लिए। ज़ानिका ये मुब्तदा है क्योंकि ये मारिफा है। बुरहानानी, बुरहानानी सूरह क़सस में इस्तेमाल हुआ है ज़ानिका, यानी वो दो बुरहानानी हमारे पास निशानियां है। बुरहानानी यानी निशानियां है, वाज़िह निशानियां है। बुरहान कहते हैं निशानी को, वाज़िह निशानी को, सबूत को। हाँ, ज़ानिका बुरहानानी ये दो निशानियां हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आ गया, और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दो निशानियां दी है। एक वो हाथ अपने जेब में डालते थे, बाहर निकालते थे, वो चमकता था। दूसरा लाठी को नीचे रख के वो सांप बन जाता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ानिका बुरहानानी, वो दो तुम्हारे पास मेरी निशानियां हैं। एक और जुमला है हाउलाई, हाउलाई हमारे पास इसमें इशारा यानी करीब का है, जमा का है। मुमिनूना ये भी जमा है, ये यानी हमारे पास उलाई का इस्तेमाल होता है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ये मुज़क्कर के लिए है, ये भी मुज़क्कर। ये हमारे पास मारिफा है और मुमिनूना नकिरा है, यानी ये सब मुमिनीन है, ये सब मुमिन है। तिल का क़रयतुन, तिल का वो मुअन्नस के लिए, क़रयतुन ये भी मुअन्नस है। क़रिया कहते हैं शहर को, इलाके को। तिल का क़रयतुन वो एक इलाका है, वो एक शहर है। उलाइका वो सब, ज़ालिमातुन उलाइका इस्तेमाल होता है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ज़ालिमातुन से आपको पता चलेगा कि ये यानी आखिर में चूंकि ये मुअन्नस हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं। उलाइका मारिफा है और ज़ालिमातुन हमारे पास नकिरा है। तो मुरक्कब इशारी से आप मुरक्कब ताम बना सकते हैं। आपको इसमें इशारा वो हमेशा आपको मारिफा रखना पड़ेगा, जबकि मुशारुन इलैह जो इसके बाद वाला इसम है उसको आपको नकिरा बनाना पड़ेगा, वो नकिरा लाना पड़ेगा, तब मुरक्कबी इशारी से आप मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया बना सकते हैं। अब इसके बाद है मुरक्कब इजाफी से मुरक्कब ताम बनाना। याद रखिएगा मुरक्कब इजाफी में, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। मुरक्कब इजाफी मैंने आपको बताया ये मुब्तदा भी आ सकता है, ये खबर भी बन के आ सकता है, उसकी हम मिसालें बताएंगे। तो मुरक्कब इजाफी में है का जो माने है, ये पैदा करने के लिए हमें किसी तीसरे इसम का इजाफा करना जरूरी होता है। अगर वो इसम शुरू में आए तो वो इसम मारिफा होना चाहिए, और अगर में वो आखिर में आए तो वो नकिरा होना चाहिए। अब सबसे पहले हम करेंगे, आपको मारिफा ले आए, ठीक है, उसके बाद मुरक्कबी इजाफी इस्तेमाल करें, तो मुरक्कबी इजाफी हमारे पास बहसती जुमला इस्मिया बन के आ गया। देखिए मुरक्कबी इजाफी यहाँ पर है रब्बुल आलमीना, रब्बुल आलमीना यानी रब है आलमीन का, रब है आलमीन का। कौन है रब आलमीन का? ये रब्बुल आलमीना हमारे पास नकिरा है। उससे पहले हमने मारिफा इसम को लाना पड़ेगा, जैसे अल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह तमाम आलमीन का रब है। ये रब्बुल आलमीन मुरक्कब इजाफी है। इससे पहले हमने मारिफा इसम लाया अल्लाहु, तो इस वक्त जो मुरक्कब इजाफी है ये खबर बन के आ गया और ये नकिरा बन के आ गया। मारिफा इसम अल्लाहु तो ये मुब्तदा है, और रब्बुल आलमीन ये हमारे पास खबर है, ये नकिरा है। सूरतुल फातिहा पहली आयत। दूसरी आयत, दूसरा यानी इसके बाद जुमला कुरान मजीद के सूरह फतह का, मुहम्मदुन
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد ہے یہ معرفہ اسم ہے. اس کے بعد آپ لائیے مرکب اضافی رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ رسول اللہ مرکب اضافی. اس سے پہلے معرفہ اسم لائیے تو ہم نے مرکب اضافی کو مرکب تام بنایا. تو اس صورت میں مرکب اضافی خبر بن کے آ گیا، اس سے پہلے اسم جو ہے وہ معرفہ ہے. القرآن یہ معرفہ اسم ہے. کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کتاب اللہ ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب یہ خبر ہے، قرآن مبتدا ہے، مبتدا خبر بن کے جملہ اسمیہ. ہاؤلائی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو یعنی اسم اشارہ ہے ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ مبتدا ہے. عباد اللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اولئکا وہ سب جمع کا صیغہ، اور آپ کو پتا ہے یہاں پر بھی یہ مبتدا ہے کیونکہ معرفہ ہے. ہمیشہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس اسم اشارہ ہوتا ہے، اسماء اشارہ وہ معرفہ ہوتے ہیں. اولئکا وہ سب، اصحاب الجنت سورۃ القصص کی آیت، اصحاب الجنت جنت والے، یعنی اصحاب الجنت جنت والے، یہ مرکب اضافی ہے. تو مرکب اضافی اس میں خبر بن کے آ گیا. اولئکا یہ معرفہ ہے، معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے مرکب تام، اور مرکب تام میں کس کی مثال ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. ہذہ پھر سے وہی اس طرح کی مثال سے یہ مرکب یعنی ہمارے پاس ہذہ ہے جو یعنی اسم اشارہ ہے. ناقۃ اللہ ہذہ یہ یہاں پر جنس کے اعتبار سے یعنی مؤنث ہے. ناقۃ اللہ ناقۃ بھی مؤنث ہے، یعنی یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ یعنی اونٹنی، ناقۃ اللہ اللہ کی. میں نے آپ کو بتایا اردو میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ مرکب اضافی کیسے ہوتا ہے تو کا کی کے اضافہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. سورۃ یعنی اعراف کی یہ آیت ہے. اللہ یہ معرفہ، نور السماوات یعنی آسمانوں کا نور، آسمانوں کا نور، تو یہ مرکب اضافی خبر بن کے آ گیا. اللہ معرفہ، اللہ معرفہ بن کے مبتدا، نور السماوات مرکب اضافی یہاں پر بن کے خبر. تو معرفہ یعنی مبتدا پلس خبر بن کے جملہ اسمیہ سورہ نور کی یہ آیت ہے. اسی طرح اللہ معرفہ اسم، ولی المؤمنین متقین متقین کا دوست، متقین کا دوست یعنی متقیوں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا دوست. اللہ متقیوں کا دوست ہے. لاسٹ میں ہے میں بیان کرتا ہوں تو اس سے جملہ بن جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرکب اضافی جو ہے اس کو آپ ابتدا میں لائیے، ٹھیک ہے، اور جو نکرہ ہے نکرہ اسم کو بعد میں لائیے. تو مرکب اضافی اس صورت میں ہمارے پاس معرفہ بنے گا. اس کے بعد نکرہ اسم کو لائیے تو مرکب اضافی ہمارے پاس مبتدا بنے گا اور نکرہ اسم جو ہے وہ خبر بنے گی. مثال رب العالمین غفور، یعنی رب العالمین جو ہے عالمین کا رب جو ہے، غفور یہ نکرہ اسم ہے تو یہ یہاں پر خبر بن کے آ گیا. رب العالمین مرکب اضافی یہاں بن گیا یہ مبتدا، اور غفور نکرہ بن کے جملہ اسمیہ یعنی رب العالمین غفور ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مرکب اضافی کو ہی مبتدا بنایا، اس کے بعد جب ہم نے نکرہ اسم لایا تو اس کی خبر بن گیا. کتاب اللہ اللہ کی کتاب، نور نور ہے، روشنی ہے. رسول اللہ اللہ کا رسول، صادق سچا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ مبتدا بن کے آ گیا، اور نکرہ اسم اس کی خبر ہے. مرکب اضافی مبتدا، صادق یعنی نکرہ اسم اس کی خبر، تو مبتدا خبر بن کے جملہ اسمیہ. رحمت اللہ اللہ کی رحمت، واسعۃ یہ کافی زیادہ وسیع ہے، بلند ہے، بے پایا ہے، یعنی کافی زیادہ وسیع ہے. آیات اللہ اللہ کی نشانیاں، بینات واضح ہے. رسول اللہ اللہ کے رسول، سب رسول مبشرون بشارت دینے والے ہیں. نصر اللہ اللہ کی مدد مرکب اضافی، قریب بہت نزدیک ہے، سورۃ البقرہ کی آیت. ارض اللہ اللہ کی زمین، یہ مرکب اضافی مبتدا. واسعۃ بہت ہی واسع ہے، بہت ہی انہیں اسپریڈڈ ہے.
वासिअतुन नकरा इसम खबर, अजरुल मुहसिनीन मुहसिनीन एहसान करने वालों का अजर मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, अज़ीमुन बहुत ज्यादा है सूरत तौबा की आयत, अज़ीमुन नकरा इसम खबर बन के आ गया, मताउद दुनिया कलीलुन दुनिया का जो मता है चीजें हैं बहुत कम है, अस्हाबुल क़रियति ये मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, साबिरूना इन्हें अस्हाबुल क़रियति इस शहर के इस जगह के लोग वो सब्र करने वाले हैं, दावतुल अंबियाई अंबिया की जो दावत है, दावत मतलब उनका जो मैसेज है, सादिक़तुन वो सच्चा है, हब्लुल्लाहि अल्लाह की जो रस्सी मतीनुन वो मतीन है। तो यहाँ पर आपके समझ में बात आ गई होगी कि मुरक्कब इजाफी को हम दोनों सूरत में ला सकते हैं। अब आखिर में हमारे पास है मुरक्कबी जारी, और याद रखिएगा मैंने आपको, अगर आप इस पे ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि मुरक्कबी जारी कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आएगा, मुरक्कबी जारी खबर बन के भी नहीं आता, वो मुतल्लिक की खबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या अगर खबर नहीं होगा तो उस सूरत में कायम मुकाम खबर बन के आता है। याद रखिएगा ये चीजें। अब मुरक्कबी जारी में है का जो माने पैदा करने के लिए इसमें भी हम तीसरे इसम का इजाफा मुरक्कबी जारी से पहले या बाद में करते हैं। तो शुरू में करेंगे तो वो मारिफा होगा और बाद में करेंगे तो वो नकरा होगा। अब कुछ मिसालों से आपको समझाएंगे, जैसे यहाँ पर आपके सामने है इसमें मारिफा प्लस मुरक्कबी जारी, जैसे अल्हम्दु इसमें मारिफा आपने लाया, तमाम तारीफें लिल्लाहि मुरक्कबी जारी। अब अल्हम्दु जो है ये मारिफा इसम है तो ये हमारे पास मुब्तदा बन गया, लिल्लाहि ये कायम मुकाम खबर है। याद रखिएगा मुरक्कबी जारी खबर बन के भी नहीं आता, इसको हम कायम मुकाम खबर कहते हैं। कायम मुकाम जब खबर अवेलेबल नहीं होती है तो खबर की इन एक्सचेंज ऑफ खबर के गैर मौजूदगी में वो खबर बन के आता है। अलीयुन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या कोई भी यहाँ नाम है अली तो इसमें मारिफा है क्योंकि इसमें अलम है। कल असदी का हमारे पास हर्फ जारा है और असदुन था असल में ये मजरूर बन गया हर्फ जारा की वजह से। कल असदी शेर जैसा है, अली शेर जैसा है, ठीक है। यहाँ पर भी कल असदी जो है मुरक्कबी जारी कायम मुकाम खबर। अल्लाह अल्लाह जो है अलल अर्श अर्श पर है, अल्लाह ये इसमें मारिफा है, ये मुब्तदा है, अलल अर्श कायम मुकाम खबर, खबर न होने की सूरत में ये भी खबर ही कहलाता है। अल जन्नतु जन्नत जो है लिल मुत्तकीना मुत्तकीन के लिए, लिल मुत्तकीना मुरक्कबी जारी। अन्नारु लिल काफिरीना नार जो है आग जो है वो काफिरीन के लिए है, लिल काफिरीना मुरक्कबी जारी यानी वो कायम मुकाम खबर। अल्लानतु लानत जो है अला ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए, अला ज़ालिमीना मुरक्कबी जारी। अल्लानतु इसमें मारिफा ये मुब्तदा है, ये कायम मुकाम खबर। अल हक़्क़ु हक़ जो है फिल कुरान कुरान में है, ये मुरक्कबी जारी। अल मुमिनून फिल मस्जिद कस्समा की फिल माए। अब देखिए अल मुमिनू इसमें मारिफा है, फिल मस्जिद कस्समा की फिल माई, ये जो है ये तीनों फिल मस्जिद कस्समा की फिल माई, ये तीनों हमारे पास मुरक्कबी जारी ने। आप अब याद रखिएगा एक से ज्यादा बार भी मुरक्कबी जारी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर फिल मस्जिद फा हरफी जारा, अल मस्जिदु था अल मस्जिद बन गया, का अस्समकु था बट का लगाने से अस्समक कस्समकी बन गया, फी अल माउ था मगर फिल माई बन गया। ये फिल मस्जिद कस्समा की फिल मा ये तीनों मुरक्कबी जारा है, तो ये तीनों कायम मुकाम खबर है। अल मुमिनूना तमाम मुमिन, अलल हिदायती हिदायत पर है, अलल हिदायती जो है ये मुरक्कबी जारी है। इसी तरह आखिर में अल कुफ्फार फि दलाली तमाम कुफ्फार जो है वो दलाला यानी गुमराही में है। दूसरी कंडीशन है कि मुरक्कबी जारी को आप पहले लाइए और उसके बाद इसमें नकिरा ले आइए, ठीक है। अब याद रखिएगा लिस्साबिरीना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये मुब्तदा बन के आ गया, याद रखिएगा मुरक्कबी जारी कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता। ये फिर कैसे पहले आ गया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कुरान में आप ये पाएंगे। इसको हम कहते हैं, ये बाद में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखिएगा किसी भी जुमले में काफी ज्यादा जोर देने के लिए हम तब्दील करते हैं, यानी कायम मुकाम खबर या खबर को पहले ले आते हैं, इसको कहते हैं तकदीम व ताखीर। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी हम
खबर को ही पहले लाएंगे या कायम मुकाम खबर को पहले लाएंगे और जो मुब्तदा है उसको बाद में करेंगे। इसको तकदीम व ताखीर कहते हैं। तकदीम व ताखीर करने से किसी भी जुमले में काफी ज्यादा स्ट्रेस जोर पैदा होता है। ठीक है, जैसे लिस्साबिरीन जन्नतुन, इसका तर्जुमा जो होगा वो होगा यानी यकीनन सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। ये जो यकीनन मैंने लाया, ये कैसे आया? ये चूंकि लिस्साबिरीना यानी मुरक्कबी जारी पहले आ गया, कायम मुकाम खबर पहले आ गई, जबकि इसका जो यानी इसमें नकरा बाद में आ गया। हालांकि इसमें नकरा नहीं आना चाहिए, सिर्फ मिसालें हैं आपको समझाने के लिए। अला शैतान लानतुन, यानी ये एक कुछ ऐसी मिसालें हैं जो हाइपोथेटिकल है। असल में मुरक्कबी जारी अगर पहले आ जाता है तो उसके बाद हम मुब्तदा ला सकते हैं। बस आपको बताने के लिए कि अगर मुरक्कबी यानी जारी पहले आ गया, क्योंकि मुरक्कबी जारी कभी हमारे पास मुब्तदा बन के नहीं आ सकता, सिर्फ आपको बताने के लिए कैसे वो ला सकते हैं। लिस्साबिरीना मुरक्कबी जारी पहले लाया तो उसके बाद हम नकरा इसम को ला सकते हैं। आपके सामने कुछ मिसालें हैं, बट ये तमाम मिसालें हाइपोथेटिकल है। अब याद रखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसको चूंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इस चीज को मैं फिर से लास्ट वाले हिस्से को अगले लेक्चर में बताऊंगा, फिर भी आपको बताने के लिए कि नाकिस मुरक्कबात से मुरक्कबी ताम हम बना सकते हैं। तो मुरक्कबी नाकिस प्लस मुरक्कबी नाकिस भी जुमला बन सकता है। अभी आपने देखा कि मुरक्कबी नाकिस या तो हमने मुब्तदा बनाया या फिर उसको हमने जुमला बनाया, यानी इसकी खबर बनाई। मगर कभी कभी आप देखेंगे मुकम्मल जो मुरक्कबी नाकिस है वो आपका मुब्तदा भी बन सकता है, और मुकम्मल जो मुरक्कब नाकिस है वो खबर भी बन सकती है। जैसे मौतुल आलिमी, मौतुल आलिमी यानी जो आलिम यानी आलम यानी आलिम जो होता है इल्म वाला, उसकी जो मौत होती है, मौतुल आलमी, आलम की मौत है, यानी पूरे इंसानों पूरे जहान की मौत है। हदीस है ये। मौतुल आलिमी यहाँ पर मुब्तदा है, मौतुल आलमी ये खबर है। ये जो पहला वाला है ये और दूसरा वाला दोनों हमारे पास कौन सा इसम है? ये हमारे पास यानी मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस की किस्म है, मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी पहला वाला मुरक्कब इजाफी ये मुब्तदा बन के आ गया, दूसरा उसकी खबर बन के आ गई। इस हिस्से को मैं थोड़ा सा अगले लेक्चर में और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके सामने ये क्लियर हो जाए। अभी हमारे पास 1 मिनट से भी कम इस लेक्चर के लिए रह गया है। दुआ करेंगे अल्लाह तबारक तआला हमारे इस सफर को आसान फरमाए। कोई अगर आपको कोई इश्काल या सवाल हो तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में बयान कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।